A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. Okay, we were studying the chapter 2, that is collection of data of your second book, that is statistics for economics. So in previous classes we were studying the methods of the collection of data. So collection of data are of two types, that is primary data and the secondary data. So in primary data, the first one is direct personal investigation, indirect oral investigation, information from the local sources, information through filling questionnaires and the schedules, in which we have studied the what is the mailing method and the what is enumerators method, as well as the telephonic interviews. Okay. So in previous class we have already completed all the primary data. What are the different types of data? What are the different sources of the primary data? So all these we have completed. So in today's class we are going to study the secondary data. So what are the different sources of data of the secondary data? So it is divided into two, that is the one which is published and the second one is which is unpublished. वो क्या है? Unpublished है. Okay. So in the published sources, this one is government publication, publication of internal bodies, semi-official publications, reports of the committee and the commissions, private publication in which general and newspaper, research institutions, professional trade bodies, annual reports of companies, article, market review and reports. Okay. So in today's class we are going to study all these published as well as unpublished sources. Okay. So let's start. Method of collection of the secondary data. First one is published sources, in which we are going to study the first one, that is government publication. Okay. So let's start. Government organization and departments of the central state government publish current information along with the statistical facts on the different topics. Okay. जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो क्या करते हैं, कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, वो लोग क्या करते हैं, कोई पब्लिश करते हैं करंट इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स ऑन द डिफरेंट टॉपिक, कि वो करंट इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पब्लिश करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉवर्टी का रेट, ग्रोथ रेट कितना हो रहा है, ये सारा डेटा क्या करती है, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कि न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको क्या करती है, वो पब्लिश करती है. ओके. ऑन द डिफरेंट टॉपिक, किसी भी डिफरेंट टॉपिक्स पे वो पब्लिश करती है. इट इज़ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ये क्या है, रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक है, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है, सो वो क्या होगा, वो रिलायबल होगा. सो नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ सच पब्लिकेशंस आर, जो एग्जाम्पल्स हैं इनके पब्लिकेशंस के, वो क्या है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज. जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनका क्या है, एनुअल सर्वे होता है, तो उनका सारा वर्किंग कैपिटल से लेके उनका एनुअल ग्रोथ कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सारा क्या आता है, इनका टर्नओवर कितना है, तो सारा डेटा पता चलता है. इंडियन ट्रेड जर्नल, ठीक है, जो ट्रेड जर्नल्स होते हैं जिसमें सब लोग अपना इंफॉर्मेशन या किसी भी टॉपिक्स पे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, वो भी पब्लिश होना. एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स भी पब्लिश होता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया, बिकॉज every country has some central bank, and in India the Reserve Bank of India is the central bank. Okay. So and the labor gazette, bulletin, etc. So these are Reserve Bank of India का, इकोनॉमिक सर्वे का, ये सारा का क्या निकलता है, बुलेटिन है, एक ये PDF फॉर्म में निकलता है, जिससे सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती. तो ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी डेटा. नेक्स्ट वन इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. ओके. सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन. सो इसमें क्या है, लाइक municipalities and the metropolitan council public information regarding the health, birth, death, एजुकेशन, सैनिटेशन एक्सेट्रा. ठीक है, जो भी म्यूनिसिपल होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं डिफरेंट, हर एक
स्टेट में, और जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, डेटा को पब्लिश करते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी हेल्थ सेक्टर कैसा है, हेल्थ में कितनी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हेल्थ सर्विसेज कितनी मिल रही है, डेथ रेट और बर्थ रेट कितना है किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, लोकल एरियाज़ में, एजुकेशन से रिलेटेड कि एजुकेशन कितने लोगों को अवेलेबल हो रही है, सैनिटेशन की फैसिलिटी, ये सारे से रिलेटेड क्या है वो डेटा को पब्लिश करते हैं। दिस सोर्स ऑफ डेटा इज़ रिलायबल इन नेचर, ये सारे जो सोर्स ऑफ डेटा है वो क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं, मतलब ऑथेंटिक होते हैं, एंड इज़ फेयरली यूज्ड, और इनको क्या है बहुत प्रॉपरली इनको यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड दी कमीशंस। रिपोर्ट ऑफ दी कमिटीज एंड दी कमीशंस की जो डिफरेंट कमिटीज हैं, डिफरेंट कमीशंस हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। ओके, सो वेरियस कमिटीज एंड द कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारी कमिटीज और कमीशंस क्या होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये सारे क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं डिफरेंट कमीशंस फॉर केस स्टडीज एंड दी सजेशंस, कि वो डिफरेंट टॉपिक पे क्या करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो उस पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और उन स्टडी के थ्रू वो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसका कैसे सजेशंस ला सकते हैं, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। सो सच बॉडी समटाइम्स पब्लिश देयर वर्क एंड फाइंडिंग्स। समटाइम्स क्या होता है, ये लोग जो भी कोई केस स्टडी किया, कोई भी स्टडी किया, जो सजेशंस दिए, उससे रिलेटेड वो क्या करते हैं, अपने डेटा को भी पब्लिश करते हैं। ओके, तो सम ऑफ द रिपोर्ट्स आर, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट ऑफ द टैरिफ कमीशन। टैरिफ मीन्स जो डेटा, जो भी टैक्स क्या है, इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स पे क्या होता है, टैक्स पे करना पड़ता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। डिफरेंट कमिटीज़ हैं, प्लानिंग कमीशन है, डिफरेंट जो भी कमिटीज़ है, तेंदुलकर कमेटी, अलग अलग क्या है कमिटीज़ बनी है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, कि कोई पॉवर्टी पे इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट पे प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई नेशनल इनकम पे दे रहा है, तो अलग अलग कमिटीज़ एज वेल एज कमीशंस बने हुए हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पे क्या करते हैं, रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है कि पब्लिकेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी अपने डेटा को पब्लिश करते हैं। सो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा आर दी सोर्सेज ऑफ पब्लिश सेकेंडरी डेटा। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO, UNO, ये सब क्या करते हैं, अपने ऑफिशियल डेटा को भी पब्लिश करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशंस ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डिफरेंट रिसर्च कराते हैं, वो भी क्या करते हैं, अपने डेटा को पब्लिश करते हैं। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डूइंग रिसर्च ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एंड द इकोनॉमिक रिसर्च एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च आर द एग्जाम्पल ऑफ द सच इंस्टीट्यूशन। ओके, कि फाउंडेशन जो साइंटिफिक और इकोनॉमिक रिसर्च है, और नेशनल काउंसिल किसकी है, अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की, वो सब क्या करते हैं, डिफरेंट रिसर्च करते हैं किसी भी टॉपिक। अब ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो ये इकोनॉमिक्स के डिफरेंट टॉपिक पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, और वो डेटा को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो ये सब क्या है, आपके जो भी डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अपने डेटा को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पब्लिकेशंस ऑफ द ट्रेड इंस्टीट्यूशंस। जो ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, वो भी क्या करते हैं, अपने डेटा को पब्लिश करते हैं। ओके, सो नाउ अ डेज ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैव देयर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल डिवीजन विच कलेक्ट एंड पब्लिश डेटा। अभी क्या हो रहा है, जो ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं हैव देयर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल डिवीजन, वो अपने क्या है, रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में क्या करते, डिवीजन करके विच कलेक्ट एंड पब्लिश डेटा, वो अपने वो डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट कर रहे हैं और उसको पब्लिश भी कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया बिजनेस में, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की जो मैंने बताया था। तो ये सब क्या है, डेटा को पब्लिश करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो भी इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, अपने डेटा को पब्लिश करते हैं। बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन, तो डिफरेंट क्या है, अलग अलग ट्रेड के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल और आउटसाइड वट एवर, सो वो क्या करते हैं, अपने डेटा को पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज जनरल्स एंड द न्यूज़पेपर। ठीक है, जनरल्स क्या होता है, इट इज़ द मंथली स्टैटिस्टिक्स ऑफ द ट्रेड जर्नल ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये क्या होता है, एक मंथली और वीकली तो नहीं, मंथली और ईयरली क्या है, जनरल्स पब्लिश होते हैं, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन कोई भी एज अ इंडिविजुअल क्या कर सकता है, वो अपनी डेटा को क्या कर सकता है, पब्लिश करा सकता है। लाइक न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या, दे रेगुलरली कलेक्ट एंड फर्निश डेटा ऑन द वेरियस टॉपिक। वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उन सारे डेटाज को फर्निश करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि रॉ डेटा ही लेकर आए वो वैसे इसको पब्लिश कर दे, उसको क्या करते हैं, वो पूरा फर्निश करते हैं, पूरा क्लियरली उसको शो करते हैं एंड ऑन वेरियस टॉपिक पे, एंड देन दे पब्लिश इट। ओके, नेक्स्ट वन इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द जॉइंट स्टॉक company. So these are useful for the procuring statistical data. ठीक है, ये क्या है, यूजफुल है, क्यों कि स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रोक्योर करने का अवेलेबिलिटी, एंड दीज आर पब्लिश बाय द कंपनीज एनुअली। ये भी जो रिपोर्ट होती है, कोई जो भी डिफरेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो कंपनीज है वो क्या करती हैं, अपने डेटा को भी पब्लिश करती है। ये शो करती हैं कि वो कितने प्रॉफिट में हैं या कितने लॉस में हैं, ये कि अपना रेप्यूटेशन शो करती है, जिससे लोग डिफरेंट पीपल क्या हो, उससे अट्रैक्ट हो। तो दीज आर यूजफुल फॉर प्रोक्योरिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। वो क्या करती है, यूजफुल है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करती हैं। दीज आर पब्लिश्ड बाय द कंपनीज एनुअली। ये जो डेटाज है एनुअल रिपोर्ट, वो कंपनीज क्या करती हैं, इसको एनुअली इसको पब्लिश करती हैं। ओके, सो इट इज़ योर पब्लिश्ड सोर्सेज और दिस इज ऑल अबाउट योर पब्लिश्ड सोर्सेज। एंड द नेक्स्ट वन इज अनपब्लिश्ड सोर्सेज। Unpublished sources or the unpublished data. Sometimes research scholars, universities, trade institutions and labor bureaus collect data but do not publish it. Sometimes क्या होता है कि जो different scholars हैं, research scholar जो research कर रहे हैं, जो different universities होती हैं जो research करा रही हैं, trade institutions होते हैं, as well as जो labours के bureau होते हैं, laborship के bureau, यहाँ पे numbers of different वहाँ से कांटेक्ट करके लेबर्स को क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो दे कलेक्ट दी डेटा, वो डेटा को कलेक्ट करते हैं बट डू नॉट पब्लिश इट, बट वो उसको क्या करते हैं, पब्लिश नहीं करते हैं। सच डेटा आर जनरली फॉर सेल्फ यूज़ और ऑफिस रिकॉर्ड। ये जो सारे डेटाज होते हैं वो क्यों होते हैं, बेसिकली फॉर दी सेल्फ यूज़, वो खुद के यूज़ करने के लिए होते हैं, और दी ऑफिस रिकॉर्ड कि वो अपना एक ऑफिस रिकॉर्ड रखें, अपना वो मेंटेन किए हैं, उसके लिए एक रिकॉर्ड, उसके लिए वो क्या करते हैं, एज अ रिजर्व रखते हैं। दिस अनपब्लिश्ड डेटा कैन बी यूज्ड एज दी सेकेंडरी डेटा। ये जो अनपब्लिश्ड डेटा है, जो पब्लिश नहीं हुआ, उसको भी क्या है, एज अ सेकेंडरी डेटा यूज किया जाता है। ओके, तो ये क्या था आपका कि अनपब्लिश्ड डेटा एंड दी पब्लिश्ड डेटा। तो अनपब्लिश्ड डेटा क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं फॉर देयर ओन पर्पस बट दे डू नॉट पब्लिश इट, उसको पब्लिश नहीं करते। दे केप्ट एज अ फॉर दी रिजर्व और दी ओनली फॉर रिकॉर्ड, कि वो उसको रिकॉर्ड के लिए रखते हैं। और इन सारे को भी क्या है कि एज अ सेकेंडरी डेटा भी अगर किसी को चाहिए तो उनसे क्या है, कॉन्टैक्ट करके वो सारे डेटाज को ले भी सकता है। ओके, सो इट इज़ योर secondary data. So from this we have completed the methods of the collection of data. So what are the different method of collection of data? So we have studied that is collection of data is divided into two, that is primary data and the secondary data. Okay, so in the primary data we have completed the direct personal investigation, indirect oral investigation, information from the local sources, information through filling questionnaires and the schedules, mailing method, enumerators method and telephonic interview. And in today's class we have completed the in the secondary data it is divided into two, that is published sources and the unpublished sources.
So we have completed the government publication, publication of the internal bodies, semi-official publication, reports of the committees and the commissions, private publication in which we have studied general and newspaper, research institutions, professional trade bodies, annual report of the companies, article, markets, review and reports. As well as we have also studied what is the unpublished sources. Okay, now the next topic is, and the last topic of this chapter, collection of data, that is limitations and the precautions of the secondary data. So what are the different limitations and what are the different precautions have to be taken when we are going through the collecting the different data through the secondary sources. Okay, so there is also there is too much of the precautions to be needed. Okay, so what are the different precautions which is to be needed? So we will discuss it. Okay, so first of all we will go through the what are the different limitations of the secondary data. So as secondary data are collected by others and need to be altered to suit the objectivity of the study, investigators should use the secondary data with full precautions and should not accept them without adjustment, as they may be suffering from the following limitations. Okay, so as secondary data are collected by the others, हम लोग को पता है कि प्राइमरी डेटा क्या है, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है. उस प्राइमरी डेटा को हम क्या करते हैं कि वो कोई भी इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट करता है. तो देयर इज little chances to be wrong or to have some very less of the limitations, but the secondary data is collected by the others, so there is too much chances to be a result comes very wrong. Okay, result क्या है कि वो wrong आ सकता है. So as secondary data are collected by others, जो secondary data है वो others collect करते हैं, so need to be altered to suit the objectivity of the study. So ऐसे उन सारी चीज़ों को ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या हो, वो ऑब्जेक्टिविटी से, वो उस ऑब्जेक्टिविटी जो भी स्टडी की ऑब्जेक्टिविटी है वो उससे सूट करे, मीन्स उससे वो मैच करे. सो इन्वेस्टिगेटर शुड यूज द सेकेंडरी डेटा विथ फुल प्रिकॉशंस. जो इन्वेस्टिगेटर है उसको क्या करना चाहिए कि डिफरेंट जो भी सेकेंडरी डेटा है उसको बहुत प्रिकॉशंस के साथ ही यूज़ करना चाहिए. ठीक है, सो द इन्वेस्टिगेटर शुड यूज द सेकेंडरी डेटा, वो सेकेंडरी डेटा को ऐसे यूज़ करे विथ फुल प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करे, एंड शुड नॉट एक्सेप्ट देम विदाउट एडजस्टमेंट एज दे मे बी सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन. और उसको बिना किसी एडजस्टमेंट के, ऐसा नहीं है कि अगर हमने देख लिया कि ये सेकेंडरी सोर्सेज हैं, सेकेंडरी डेटा है, मतलब गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया है, एज वेल एज किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन से आया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आया है, तो हम ये बोल दें कि बिना इसको एडजस्ट किए, बिना उसको ऐसे ही हम क्या कर दें अपने रिसर्च और अपनी स्टडी में इसको ले लें. ऐसा ज़रूरी नहीं है. हमें क्या करना पड़ेगा, विदाउट एडजस्टमेंट वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट ऑल द डेटाज, कि हम बिना एडजस्टमेंट के वो सारे डेटाज को एज इट इज़ क्या है नहीं ले सकते हैं, एज दे मे बी सफरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन. क्या है क्योंकि वो बहुत सारे लिमिटेशन से क्या है वो फेस और सफ़र कर सकता है. बिकॉज हमें पता है कि ये क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज हैं. बिकॉज कोई भी अब जो रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है, उसका क्या है, वो उस पर वो तुरंत तो ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकता ना कि ये जो डेटा है वो एकदम ऑथेंटिक है, रिलायबल है. तो उसको क्या करना चाहिए, पहले उस प्रॉपरली उसको स्टडी करना चाहिए. जैसे एक दो जगह से, एक दो सोर्सेज से और वो चेक कर ले कि जो डेटा है वो क्या प्रॉपरली वैसा ही है, कुछ ऐसा तो नहीं कि वो मे बी ये रॉन्ग हो. तो विदाउट प्रॉपर एडजस्टमेंट द डेटा शुड नॉट बी सेलेक्टेड, डेटा को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए. ओके, सो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस. फर्स्ट वन इज these may not have been collected by the proper statistical techniques. मे भी ये चांस हो सकती है कि इसकी लिमिटेशन यही है कि हो सकता है ये जो सारे डिफरेंट डेटाज कलेक्ट हुए हैं वो प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू कलेक्ट नहीं हुआ. जैसे हम लोगों को क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में क्या पढ़ा है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी में हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, कोई भी डेटा को कलेक्ट करते हैं. ओके, तो देयर इज ऑल्सो चांसेस कि वो डेटा क्या है बिना कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ किए वो
हो सकता है ऐसे ही कलेक्ट हो गया हो। नेक्स्ट वन इज दीज मे नॉट बी सुटेबल टू बी कंसर्न्ड इंक्वायरी, मे भी ये भी चांसेस हो सकता है कि जो कंसर्न्ड इंक्वायरी जिस पे मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ वो उससे रिलेटेड वो डेटा ना हो, ये भी चांसेस। ये नहीं कि अब मेरे को मैं एम्प्लॉयमेंट में किसी और टॉपिक पे स्टडी करी थी कि कितना एनुअल लोगों की रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, और मुझे डेटा क्या है किसी और चीज़ से मिल गया, मेल और फीमेल का मिल गया। तो क्या है, ये भी बहुत मैटर करता है कि वो जो डेटा मुझे चाहिए वो उससे क्या हो, कंसर्न सब्जेक्ट से वो मैच भी करता हो। नेक्स्ट वन इज दीज मे नॉट रिलेट टू द प्रेजेंट टाइम्स, ये भी मे भी कंडीशन हो सकता है कि मुझे डेटा क्या है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में चाहिए, 2020 का चाहिए, और मुझे जो लेटेस्ट डेटा है वो 2013 का मिल रहा हो, 2014 का मिल रहा हो। तो ये भी क्या है, ये भी एक इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस है कि हमें क्या है अगर प्रेजेंट में स्टडी करना है तो डेटा शुड बी इन एट द प्रेजेंट टाइम, वो प्रेजेंट टाइम का ही होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज these may not have been collected according to a reasonable standard of accuracy. समटाइम्स ये भी चांसेस हो सकती हैं कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो प्रॉपर एक्यूरेसी और प्रॉपर क्या है एक स्टैंडर्ड के साथ नहीं वो कलेक्ट हुआ हो, क्योंकि ये चांसेस हो सकती है ना कि मे बी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हम लेके चल रहे थे कि जो इसको पब्लिश करती है सेकेंडरी सोर्सेज को, जो एनुअल रिपोर्ट्स है, जर्नल्स है, ट्रेड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू और डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू एज वेल एज जो कमीशंस और कमेटी वो डेटा को पब्लिश कर रही थी, ये भी उसमें चांसेस होती हैं कि हो सकती है कि वो प्रॉपर स्टैंडर्ड जो एक्यूरेसी का वो मेंटेन ना करे, वो बस डेटा को ऐसी बस पेपर वर्क के लिए और अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो ऐसे क्या कर लिया, इसको बस शो कर दिया, ये भी चांसेस हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों का ये लिमिटेशंस भी हो सकती है कि प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ उसको सेलेक्ट ना किया होगा। नेक्स्ट वन इज दीज मे बी बायस्ड एंड हेंस नॉट रिलायबल। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि कोई अपने इंस्टीट्यूशंस को, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी ने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, तो मे बी ये भी चांसेस है कि वो अपने डेटा को क्या करे, प्रॉपर शो करे, या देयर ऑल्सो चांसेस ऑफ द बायसनेस, वो क्या हो बायस्ड शो करे, अगर दूसरी कंपनी के साथ वो कंपैरिजन शो कर रहा है तो उसको क्या करे, उसका बैड इफेक्ट दिखाए और अपना गुड इफेक्ट दिखाए, तो इससे क्या होगा, डेटा क्या है वो रिलायबल नहीं होगा। तो ये सारी क्या है उसमें चांसेस भी हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये सारी इसकी लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन इसकी क्या है, दीज मे नॉट हैव बीन कलेक्टेड बाय द प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक, कि क्या हो सकता है डेटा जो भी कलेक्ट हुआ है वो प्रॉपर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट टूल्स के थ्रू ना ही उसको कलेक्ट किया गया हो। सेकेंड वन इज दीज मे नॉट सुटेबल फॉर द कंसर्न इंक्वायरी, जो जिससे रिलेटेड मेरा इंक्वायरी जिस पे मेरे को रिसर्च करना है उससे रिलेटेड वो डेटा ना हो। थर्ड वन इज दीज मे नॉट रिलेट टू द प्रेजेंट टाइम्स, ऐसी भी चांसेस हो सकती हैं कि वो जो डेटा मुझे सेकेंडरी सोर्सेज से मिल रहा है वो प्रेजेंट टाइम का भी ना हो। नेक्स्ट वन इज दीज मे नॉट हैव बीन कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, ये भी चांस हो सकती है कि वो जो भी एक्यूरेसी का जो डिफरेंट हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं उसके थ्रू वो कलेक्ट ना हुआ हो। एंड द लास्ट वन इज दीज मे बी बायस्ड एंड हेंस नॉट रिलायबल, ये क्या हो सकता है, इसमें ये भी चांसेस है कि वो रिलायबल, वो बायस्ड हो, इट इज फुल ऑफ द बायस्ड एंड सो दैट दैट डेटा विल नॉट बी रिलायबल, वो डेटा क्या होगा वो रिलायबल और ऑथेंटिक नहीं होगा। So these all are the some limitations of the secondary data. Now the next one is, we have completed the limitation. Now the next one is, what are the different precautions in the use of the secondary data? या अगर हम secondary data को use कर रहे हैं तो what are the different precautions which we have to take in, कि हमें कौन से ऐसे precautions हैं। So when we are going through the use of the secondary data, जब हम secondary data को use कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से ऐसे precautions को लेना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज कॉम्पिटेंसी ऑफ द कलेक्टिंग एजेंसी, की जो कलेक्टिंग एजेंसी है जो डेटा को कलेक्ट करी वो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मीन दे कैन बी कैपेबल, वो कैपेबल होनी चाहिए, ठीक है, वो एबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उससे आता ही नहीं हो, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करना, डिफरेंट मेथड और टेक्निक को यूज़ करना आते ही नहीं, वो बस डेटा को कलेक्ट करेंगे नहीं। Okay, so the data should be used only if these are collected by the reliable, impartial and competent agency. ये डेटा क्या होगा, the data should be used, तभी यूज़ कर सकते हैं only if कि these are collected by, ये जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट हो, रिलायबल सोर्स से कलेक्ट हो, मतलब ऑथेंटिक हो, इम्पार्शियल हो, मतलब वो पार्शियलिटी ना करे, वो डेटा ऐसा ना हो,
एज वेल एज कॉम्पिटेंट एजेंसी के थ्रू। जो एजेंसी क्या है वो कॉम्पिटेंट है, कैपेबल हो, वही एजेंसी उसको क्या करे, कलेक्ट करे। सो द एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन शुड बी चेक। जो भी कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो उस डेटा को कलेक्ट कर रही है उसकी कॉम्पिटेंसी को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या है कि अगर हमें तो क्या है, हम तो बस सेकेंडरी डेटा हमें स्टडी करना था, मैंने बस ले लिया। हो सकता है वो जो उसको कलेक्ट किया वो प्रॉपर नहीं शो कर रहा हो, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का कंट्रीब्यूशन है वो बस ऐसे ही शो कर दिया हो, प्रॉपरली वो सही कंट्रीब्यूशन ना दिखा रहा हो। तो ये क्या है, अगर वो इंस्टीट्यूशन कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो रिजल्ट में भी रॉन्ग, रिजल्ट और जो हमें मिलेगा फाइनल आंसर वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो पहला क्या है, क्या है, बोला जाता है ना कि कोई एक ऑथेंटिक से साइट से जाके आप लोग कोई रिसर्च टेस्ट करिएगा, आप लोग कोई भी आंसर देखिएगा। क्यों? क्योंकि क्या हो सकता है कि वहाँ पे कि जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी साइट है वो मे बी दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इन दैट सब्जेक्ट मैटर, वो उस सब्जेक्ट मैटर में कॉम्पिटेंट नहीं होगी। तो ये क्या चांसेस हो जाती हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस कलेक्ट कर रही है डेटा, दे शुड बी अ कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट वन इज सुटेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। So data should be used only if the objective of the study as undertaken earlier matches with the objective. Okay, जो data हम use कर रहे हैं, if the objective of the study as undertaken earlier matches, कि जो भी हम objective study का ले के चल रहे हैं उससे वो match करना चाहिए। And scope of the current statistical inquiry, जो भी हम current statistical inquiry लेके चल रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ कलेक्शन। द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन यूज्ड बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर शुड मैच द नेचर ऑफ द प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ कलेक्शन की जो कलेक्शन का वो मेथड क्या होगा, तो जो मेथड ऑफ कलेक्शन है इज यूज्ड बाय द ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर, वो क्या है, एक ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर के थ्रू होना चाहिए। विच शुड बी मैच द नेचर ऑफ द प्रेजेंट स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। वो किससे मैच करना चाहिए कि जो भी प्रेजेंट में स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी हम लेके चल रहे हैं उससे वो मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम टॉपिक कुछ और लेके चल रहे हैं और डेटा कुछ और कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं, वो क्या होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से मैच करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज कंडीशन ऑफ द कलेक्शन। द इन्वेस्टिगेटर शुड स्टडी कंडीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। For instance, data collected during times of war may not be suitable to study an inquiry during time of peace. क्या है कि कंडीशन क्या है कलेक्शन की, द इन्वेस्टिगेटर शुड स्टडी कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करे, वो कंडीशन की भी, इन्वेस्टिगेशन की कंडीशन को भी स्टडी करे। ऐसा नहीं कि वो इन्वेस्टिगेशन की इसको पता ही नहीं है कि कंडीशन क्या है, वो बस उसकी स्टडी कर रहा है। For instance, data collected during times of war may not be suitable to study inquiring during times of peace. कि जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है, whether it is in the case of war, कि वो वॉर के टाइम में कलेक्ट हुआ है, हम उसको क्या करें, एग्जीक्यूट कर दें in the time of peace, कि पीस चल रहा है उस टाइम हम ये वॉर का सिचुएशन दिखा, नहीं। जो कंडीशन है कलेक्शन की वो भी अगर वैरी कर रही है तो हम उसको क्या है उस सिचुएशन में इम्पोज नहीं कर सकते। ओके, next one is accuracy and the last one is accuracy. So accuracy of data should also be kept in mind, कि जो डेटा की accuracy है उसको भी क्या करना है, it should be keep in mind. If the available data do not possesses required level of accuracy, then such data should not be used. ठीक है, जो अवेलेबल डेटा है वो क्या है, वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ मैच अगर नहीं कर रहा है, जो भी एक्यूरेसी हमें चाहिए उसके साथ अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो देन सच डेटा शुड नॉट बी यूज्ड। तब वो सारे डेटा हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बीइंग कलेक्शन ऑफ द डेटाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। उसमें क्या होना चाहिए, देयर शुड बी एक्यूरेसी होना चाहिए, वो एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो। हम इनको इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते। ओके, so it is your about the chapter 2, that is collection of data. From this we have completed the chapter 2, collection of data. So in this chapter what we have discussed first of all what is the statistical inquiry। statistical inquiry क्या होती है,
Next, we have discussed the source of data. So source of data is what we have. What are the different sources of data? So it is divided into two, that is internal sources of data and the external sources of data. Then external sources of data is further divided into two, that is primary source of data and the secondary source of data. So next topic we have discussed what are the different methods of the collection of data. So it is divided into two, that is primary and the secondary sources of data. So in this we have discussed in the primary data, we have discussed first one is direct personal investigation, direct oral investigation, information from the local sources or the correspondence, information through filling questionnaires and the schedules, in which we have discussed the mailing method and the enumerator method. And next is personal interview. So all these we have discussed in the primary data. In the secondary data, so secondary data is further divided into two, that is published sources and the unpublished sources. So in the published sources, we will study the government publications, publication of the internal bodies, semi-official publication, reports of the commissions and the committees, private publications, so general and the newspapers, research institutions, professional trade bodies, annual reports of the joint stock company, article, market reviews and the reports. Okay, and last topic what we have discussed, what are the different limitations and the precautions of the secondary data. So what are the different limitations which we have to be taken, which we have to be see, as well as what are the different precaution which we have to taken while using the secondary data. Okay, so from this we have completed the chapter 2, that is collection of data. So in the next class we will start the third chapter, that is method of the statistical inquiry. Okay, method of the statistical inquiry, that is census and the sample method. Okay, so in the next class we will start this topic. Okay, so it's all about your today's class. We will start the new chapter in the next class. Okay, thank you.